Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Friends, I hope you have learned the first lesson, which poem Ice Cream Man, which I have taught you, and I hope you have learned grammar topic also. Here in this video, we will cover explanation of the lesson, wonderful, words and new words. So let's start. Now, students, tell me, what are these? Yes, these are a basket and a piece of art made up of waste paper. So, we can reuse these paper to make beautiful things. Now, what are these? These are some pieces of clothes. Okay, next, do you know what are these things made up of? Yes, the doormat and hairband are made of waste piece of cloth. So, we can make many things using waste paper or waste pieces of clothes in our house. So, now students, can you tell me some means of material those are thrown away at home and in a school? Okay, so these are, yes friends, so these are some of them. We use note, we throw away paper bags, newspaper, pencil shaving, bangles and many more items. After using, we throw them away. So do you think, can we reuse them? Yes, sometime we can reuse them and prepare a new useful item like this here. You can see in this picture. Yes, first one, what we have to use to make this one beautiful stand, pen stand. So यहाँ पे क्या use किया होगा? Yes, you are right. Plastic bottle. Next picture देखिए, उसमें क्या use हुआ है? Yes, CD. Next, pencil shaving and many more. So ये सारी जो चीज थे वो हमने वेस्ट में से बनाई है और वो भी बेस्ट. So friends, let's start our chapter wonderful waste. Have you? Okay, so let's start. So waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Friends, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो वेस्ट है वो भी यूजफुल हो सकता है? तो आज हम ये जो स्टोरी लर्न करने जा रहे हैं उसमें से आपको ये फाइंड करना है कि वंडरफुल वेस्ट जो स्टोरी है उसमें से ये है कि वेस्ट कितना यूजफुल हो सकता है हमें. सो लेट्स स्टार्ट. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. So friends, what is the meaning of palace? Have you seen a palace? Friends, yes, palace is a huge house of the king, very beautiful and a big house of the king. So these are the two examples of palace. So students, do you know where is Travancore located? Yes, here you can see in the picture. This is the map of India and this is the map of Kerala. So you can see in the map of India, this part is Kerala. यहाँ पे इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज केरला एंड इट इज हियर. सो ट्रावनकोर इज लोकेटेड इन केरला, हियर तिरुवनंतपुरम. एंड सो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते. तो क्या बात थी कि वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार की बात है, जो ट्रावनकोर के जो महाराजा थे उन्होंने अपने पैलेस में एक बहुत ही बड़ी दावत का आयोजन किया था. So in the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. यानी कि जो शाम की जो दावत थी, जो बहुत ही बड़ी दावत, उसके पहले महाराजा ने किचन में जाके वो जो डिश बनने वाली थी, वो जो गेस्ट आने वाले थे उनके लिए डिश में क्या बना है वो चेक करने के लिए जाते हैं. So what are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. And the cook replied, they are waste. We will throw them away. अब महाराजा जो है वो कुक को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? What are you going to do with those vegetable scraps?
जो महाराजा थे उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स देखे, यानी कि वेजिटेबल्स के टुकड़े, छिलके जो होते हैं टुकड़े, वो सारे जो वेजिटेबल का जो स्क्रैप थे वो महाराजा ने देखे। तो वो बोले कि तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप का क्या करोगे? ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, यानी कि कुक जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे एक बास्केट था और उस बास्केट में ये वेजिटेबल सारे जो स्क्रैप थे वो उसको पॉइंटिंग करते हुए पूछा कि तुम इन सारे वेस्ट, ये जो स्क्रैप थे वेजिटेबल, उसका क्या करोगे? द कुक रिप्लाई, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने महाराजा को रिप्लाई किया, आंसर दिया कि दे आर वेस्ट, वो वेस्ट है, तो we will throw them away, तो हम उसको फेंक देंगे। नेक्स्ट, you cannot waste all these bits and pieces of vegetables, find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away। और फिर महाराजा ने क्या कहा उस कुक के? You cannot waste all these bits and pieces of vegetables, ये जो सारे जो वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं या तो उसके जो टुकड़े हैं उसको तुम वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि तुम जो बात कर रहे हो तुम उसे फेंक दोगे, तो तुम इस तरह उसे फेंक नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, और एक नया रास्ता निकालो कि तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप जो है उसका यूज कर सको। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली एंड वॉक अवे, महाराजा ने बहुत ही सख्ती से उस कमांड किया, यानी कि ऑर्डर किया उसको कि तुम उसका रास्ता निकालो, और चले गए। सो फिर क्या हुआ? लेट्स सी। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time। फिर कुक जो था वो तो एकदम से प्रॉब्लम में पड़ गया कि अरे भाई, ये तो राजा ने तो बोल दिया कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उसका यूज करो, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? वो तो प्रॉब्लम में हो गया और बेचारा एकदम से उस जो वेजिटेबल जो यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक बास्केट दिया गया है और उसमें क्या है? वेजिटेबल स्क्रैप्स है। तो जो कुक था वो उसको देखते ही देखते रहा और फिक्स हो गया, यानी कि सोच में पड़ गया, अब मैं करूँ क्या? सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, सडनली अचानक से एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, यस मैं ऐसा कुछ कर सकता। तो लेट्स सी क्या आया। ही टूक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। तो उसने फिर क्या किया? वो जो सारे वेजिटेबल्स के जो स्ट्रिप्स थे वो सारे उसने ली एंड देन उसके अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया और अच्छा कर लिया। देन he cut them into long strips, he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। फिर उसने क्या किया? तो उसको जो सारे स्टेप्स थे उसको एक बड़ी लंबी स्ट्रेप्स, लंबे टुकड़े कर दिए। he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook, यानी कि उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया एंड देन उसमें जो सारी जो स्ट्रिप थी वेजिटेबल्स की वो डाली और कुक करने के लिए फायर पे रख दी। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, he added this paste and some salt to the cooking vegetable। फिर उसने क्या लिया? कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, इन सारी चीजें लेके फिर उसने एक पेस्ट बनाई and he added this paste and some salt to the cooking vegetables। फिर उसने जो पकने के लिए रखा था वो बड़े से बर्तन में उसमें उसने ये पेस्ट डाली और सॉल्ट डाला और वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए रख दिया। एंड देन फिर a tempting smell started coming from the pot, और एकदम से बहुत ही अच्छे से खुशबू उस पॉट से, वो जो बर्तन था उसमें से आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। फिर उसने क्या किया? whipped some curd, कर्ड का मतलब होता है दही, तो फिर दही को उसने लिया, उसको मथा एंड देन added it to the curry। फिर उसने जो करी बनाई थी उसमें उस कर्ड को उसने ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। फिर उसने जो कोकोनट्स के 2-3 जो ड्रॉप्स थे कोकोनट ऑयल के वो लिया और करी लीव्स ली और उसकी तरह से वो जो डिश बनी थी उसको उसने डेकोरेट कर दिया और अच्छी सी डिश बन गई। सो लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। अब एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे वाह,
जो न्यू डिश थी वो तो रेडी हो गई थी, और वो भी कैसे, वेजिटेबल स्क्रिप्ट से। सो द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और फिर उस जो शाम जो थी, जो वहाँ पे जो दावत थी, उसमें जितने भी सारे जो गेट्स आए थे, गेट्स, उसको ये जो डिश थी वो उसने सर्व की। सो everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. So everyone was eager to know the name of the new dish. यानी कि अब हर कोई जो था वो ये जो न्यू डिश जो बनी थी उसको जानने के ईगर थे, यानी कि एंथुसियास्टिक थे कि अरे भाई ये जो न्यू डिश बनी है उसका नेम है क्या। द कुक थॉट एंड थॉट, अब जो कुक था वो तो सोच में ही पड़ गया कि सोचने ही लगा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और सडनली उसके जो माइंड में एक नेम याद आया, और ही नेम इट अवियल, और फिर उसने वो जो डिश बनी थी उसका नेम रख दिया अवियल। So Avial become famous all over Kerala, and it is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. So Avial become famous all over Kerala. अब जो ये जो डिश जो बनी थी बहुत ही अच्छी सी और स्वादिष्ट डिश, उसका नेम तो रख गया अवियल, और ये अवियल जो है वो केरला में फेमस हो गया। और अभी जो ये जो डिश है वो ट्रेडिशनल डिश में से एक है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है या तो कोई ओकेशन आता है तो हम ये ट्रेडिशनल, जैसे दिवाली पे या तो कोई फेस्टिवल होते हैं तो जैसे बनाते हैं, वैसे ही ये भी केरला में ट्रेडिशनल डिश बन गई। यानी कि कैसे जैसे ओकेशन हो गए तो यहाँ पे ये केरला की फेमस डिश जो कि है अवियल वो बनेगी। सो एंड इमेजिन it all came from a basket of waste। अगर ये सोचा जाए तो ये जो डिश बनी वो है तो किस में से बनी, यस, बास्केट ऑफ वेस्ट। फ्रेंड्स, यानी कि इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होती, जहाँ तक हो सके उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और हो सकता है कि कुछ नया बन जाए, जैसे कि ये चीज़ क्या बना, अवियल बने। Okay friends, now let's learn new words. Yes, in a phase, so a situation hard to accept from, यानी कि यहाँ पे हमने स्टोरी में देखा कि जैसे कि जो कुक था वो एकदम फिक्स हो गया, यानी कि सोच में पड़ गया, प्रॉब्लम में पड़ गया, करे भाई मैं डिश का नेम, ये जो सारी न्यू डिश बनानी है वो बनाऊँ तो कैसे, लाइक दैट। नेक्स्ट, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कोई आइडिया आ जाना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल feast, it means hearty meal for many guests served on a special occasion. Okay friends, I hope you have enjoyed the lesson. Thank you so much.